He says Machiavelli argued that an effective ruler must embody both the cunning of fox and strength of lion. Here Machiavelli says a prince must have qualities of both fox and lion. The fox represents intelligence, adaptability, and the ability to outwit others, especially in the situations where deception or strategic thinking is required. Here Machiavelli says to Prince the- that you must have the qualities such as intelligence, adaptability, and ability to fight against the person who is trying to betray you, especially when someone is trying to make you fool. So at that situation, you must be clever enough to fight against those person. And here the lion symbolizes courage, strength, willingness to comfort danger head on. So here, friends, Machiavelli says, here you must also have the qualities of lion, such as courage, strength, because various danger situations will come to you and you need to face those situations. So in order to face those situations, you must have the qualities of lion as well as fox. So now Machiavelli talks on the management of power. Machiavelli says, for a long run, rulers, there should be a fear in the minds of people. Means rulers has to create a fear in the minds of people. So why there should be fear over the love? So here, friends, fear should be in the minds of people for prince, or else people will misbehave and sit on the heads of prince. So if any person misbehaves with prince, prince should kill those person immediately so that people will know their limit and will not go against the prince. So, friends, fear plus love is the best combination for a prince to rule. And it is even reliable for the long term of rule of prince. And now, friends, Machiavelli talks on the appearance of prince. Here, Machiavelli suggested that a ruler should always appear virtuous, even if they must act otherwise. If they are not virtuous, they must act as they are virtuous. He believed that people are more influenced by what they see than what the actual truth is. So maintaining a public image of integrity and capability is very crucial to rule. So Machiavelli says a prince who do not have virtue must act like he is virtuous because people are influenced by what they see over the actual truth. So to be a good prince, one should know how to react with people, how to act in front of people so that people will like them for a long period of time and people will stay with them. So this is what Machiavelli says on the management of power of a prince. So let us move to the next topic of Machiavelli, that is Machiavelli on the roles of ethics in politics. So it is believed that in history of Western political thinkers, no other thinkers has been criticized as Machiavelli, primarily because of separation he has made between politics and ethics. So here, friends, I will use both Hindi and English for your better understanding. पूरे वेस्टर्न थिंकर्स में मैकेबली को माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुए हैं, क्योंकि मैकेबली ने पॉलिटिक्स और एथिक्स को टोटली सेपरेट कर दिया है। पॉलिटिक्स से वो टोटली सेपरेट कर दिया है एथिक्स और मोरालिटी को, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं। सो द रीज़न व्हाई मैकेबली इज़ क्रिटिसाइज्ड बिकॉज़ ऑफ सेपरेशन ऑफ ethics and morality from politics. So here he says, according to Machiavelli, politics is independent of ethics, means there is no role of ethics in polity. So यहाँ Machiavelli कहते हैं जब आपका एम रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है तब वहाँ पे एथिक्स और मोरल वैल्यूज उतना मायने नहीं रखता है. And the next one is nothing is superior than preservation and promotions of national interest or even the religion or moral beliefs of the prince. So यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है, नाइदर मोरल वैल्यूज नॉर एथिक्स और ना ही रिलीजन्स. सो यहाँ पे ये तीनों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये मैकेबली कहते हैं. एंड नेक्स्ट ही सेज मैकेबली एडवाइज द प्रिंस इन preserving and safeguarding this type of state. All means adopted by the state are justified. Prince should give priority to power. So here, friends, Machiavelli कहते हैं
कि आप कोई भी रास्ता चुने, अगर आपका एम है कि आपको स्टेट इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, आपको नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, तब आप कोई भी अपना मेथड अपना सकते हैं, चाहे वो एथिक्स के खिलाफ हो, चाहे वो मोरल वैल्यूज के खिलाफ हो, नो मैटर, you can opt anyway preserve the national interest to safeguard a national interest. Gives power to Machiavelli gives priority to power here. Next one is because in politics, prince has to take decisions in national interest, timely and relation or ethics may create dilemma for prince. Here friends, Machiavelli कहते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पे एथिक्स या रिलीजन या फिर मोरल वैल्यूज को खिलाफ जाना पड़े प्रिंस को। वहां पे अगर प्रिंस मॉरल वैल्यूज को चुनते हैं तो हो सकता है कि पूरा नेशन खतरे में आ सके, कि जहां पे जो डिसीजन लेना चाहिए वहां तो वो ले नहीं रहे हैं। अगर वहां पे अगर आपको सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि आपको वहां पे एथिकल नहीं होना है, आपको मॉरल वैल्यूज नहीं रखना है, वहां पे आप वो कीजिए, क्योंकि वो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए है, वो नेशन के इंटरेस्ट के लिए है। तो आप कोई भी रास्ता चुने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका एंड गोल होना चाहिए नेशन इंटरेस्ट। दैट इज व्हाट मैकियावेली सेज हियर। The next point is political action can't be judged by the parameters of ethics. A particular action may be ethically wrong but politically correct. Thus, politics has its own morality. यहाँ पे कहते हैं फ्रेंड्स कि आप पॉलिटिक्स को कभी भी एथिक्स और मोरल वैल्यू से जज नहीं कर सकते हैं। ये पॉलिटिक्स कोई डिसेंट आदमी का काम नहीं है। यहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन लेना पड़ता है। अगर सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि भाई आपको अनएथिकल होना है, आपको मोरल वैल्यूज नहीं रखना है, आप वो कीजिए, क्योंकि वो आप एक नेशन के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स व्हाट मैकियावेली सेज हियर, पॉलिटिकल एक्शन कांट बी जज्ड बाय द पैरामीटर्स ऑफ एथिक्स। And the next one is morality and ethics has different spheres. According to Machiavelli Prince, Machiavelli के हिसाब से मोरालिटी और एथिक्स दोनों ही अलग है, दोनों का अलग अलग स्पीयर्स है। इसको और ब्रीफली समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे वो कहते हैं मोरालिटी एंड एथिक्स कांट बी मिंगल्ड, दोनों मिक्स नहीं हो सकता है विद द रीजन ऑफ स्टेट। टू ए प्रिंस पावर ऑफ स्टेट इज सुप्रीम इंपॉर्टेंस। यहाँ पे फ्रेंड्स मोरल वैल्यूज और एथिक्स को एक साथ मत कीजिए। अगर आपका एम है स्टेट इंटरेस्ट, अगर आपका एम है नेशन इंटरेस्ट, तो आपका यहाँ पे जो सुप्रीम इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो आपका नेशन इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि एथिक्स होना चाहिए, ना कि आपको मोरल वैल्यूज रखना चाहिए। सो यहाँ पे वो कहते हैं फॉर ए प्रिंस पावर ऑफ स्टेट इज सुप्रीम इंपॉर्टेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंस स्टेट को दिया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस नेशंस को दिया गया है, नेशन इंटरेस्ट को दिया गया है। And the next one is Machiavelli gives the concept of dual morality. Morality of a prince is very important for morality of common man. Common man can sacrifice himself for principle, but prince can't sacrifice the interest of his nation for his belief. So यहाँ पे friends एक आम आदमी का सोच और एक प्रिंस का सोच में बहुत ही अलग फर्क है। हो सकता है जो डिसीजन प्रिंस ले रहा है वो एक आम आदमी के लिए बहुत ही गलत है, बट वो प्रिंस के लिए गलत नहीं है, क्योंकि भाई वो नेशन इंटरेस्ट के लिए ले रहा है, वो स्टेट इंटरेस्ट के लिए ले रहा है। वहीं एक कॉमन मैन अपना खुद का इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, अपना एक बिलीफ्स के लिए वो कर रहा है। तो अगर सेम चीज प्रिंस करता है तो भाई पूरा नेशन खतरे में हो सकता है, क्योंकि पूरा अथॉरिटी उसके पास है। मिलियंस ऑफ लाइफ एक प्रिंस के हाथ में होता है। अगर वो कुछ भी गलत कदम उठाता है तो पूरा नेशन इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा। सो जो शायद एक कॉमन मैन के लिए वो गलत हो सकता है, जो भी एक डिसीजन हो, जो एक प्रिंस का डिसीजन है वो कॉमन मैन के लिए गलत हो सकता है, बट वो प्रिंस के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ही वो डिमांड कर रहा है कि एक प्रिंस को अनएथिकल होना है, तो वो होगा, क्योंकि वो नेशन इंटरेस्ट के लिए है। गॉट इट? सो हियर ही सेज एंड जस्टिफाइज द मीन, दैट इज व्हाट मैकियावेली सेज हियर। इन हिंदी भी कॉल इट एज अंत ही भला है। चाहे आप एंड को पाने के लिए, यहाँ पे फ्रेंड्स एंड को पाने के लिए आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल करता हो, चाहे वो अनएथिकल हो, चाहे वो मोरल वैल्यूज नहीं रखता हो, नो मैटर, आपको अगर एंड सही मिल रहा है, अगर आपका एंड एक नेशन इंटरेस्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप अनएथिकल हो रहे हो, चाहे आप मोरल वैल्यूज नहीं रखते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक फ्रॉम यूपीएससी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, समझ लेना। फ्रेंड्स व्हेन यू क्वालिफाइज योर यूपीएससी एग्जाम एट एंड व्हाट यू गेट। सो यहाँ पे आपका एंड क्या है? यहाँ पे आपका एंड है पोजीशंस। सो पोजीशंस को पाना ही आपका एंड है यहाँ पे, है ना। तो जब आपको यहाँ पे पोजीशंस मिल जाता है तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, तब आपको कोई सोसाइटी वाला कुछ नहीं बोलता है, कोई आपका फैमिली मेंबर्स आपसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आपका एंड ही आपका पोजीशन है जो आपको मिल चुका है।
सो इन द सेम वे यहाँ पे प्रिंस के लिए एंड क्या है? यहाँ पे प्रिंस के लिए एंड है नेशन इंटरेस्ट। नो मैटर वो कौन सा स्टेप उठा रहा है, नो मैटर वो कौन सा मेथड उठा रहा है, चाहे वो गलत है या सही है, अगर उसका एंड ही नेशन इंटरेस्ट है तो भाई सब कुछ सही है उसके लिए, कुछ भी गलत नहीं है। एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, दोनों एक स्टूडेंट है यूपीएससी का, ठीक है। यहाँ पे दोनों यूपीएससी स्टूडेंट हैं एंड दोनों के पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है। बट यहाँ पे पर्सन ए है, वो काफी एथिकल है, काफी एथिकल है और काफी अच्छा मॉरल वैल्यूज रखते हैं। वेर एज पर्सन बी जो है वो भी काफी अच्छा पढ़ते लिखते हैं, उनके पास एथिकल नहीं है, वो अनएथिकल है। भले वो कुछ भी गलत कर रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान, बट वो एट लास्ट में पर्सन बी है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, बट पर्सन ए यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं। लेकिन उनके पास बहुत ही वो एथिकल, बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज रखते हैं। बट यहाँ पे जो फ्रेंड्स उनके फैमिली होंगे पर्सन बी का, वो काफी खुश होंगे। भले वो प्रिपरेशन दौरान में बहुत ही गलत काम किया हो, कुछ भी गलत किए हो, वो नहीं देखा जाएगा, उसका एंड देखा जाएगा। अगर वो पोजीशन हासिल करता है, देयर पेरेंट्स विल बी हैप्पियर। वेयर एज पर्सन ए जो है वहां पे उनके फैमिली खुश नहीं होंगे, क्योंकि एंड में वो पोजीशन को हासिल नहीं कर पाया, भले ही वो बहुत ही अच्छा इंसान हो। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। If prince sacrificed for the purity of men's, no one will excuse friends. Here, if something wrong happens with nation, then people will criticize the prince. People will go against the king. Why? Because people wants to see the end. Means अगर end में nations को वो बचा सकता है, nations को अच्छे से run कर सकता है, तो people वहाँ का बहुत ही खुश होंगे, चाहे वो कितना unethical हो, चाहे वो moral values रखता हो या ना रखता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But when we talk about the idealist thinkers such as Gandhi and Plato, वो इसका खिलाफ है भाई। वो बोलते हैं कि अगर वहां पे एथिक्स और मोरल वैल्यूज एब्सेंट है, वो एक डेथ ट्रैप बन जाएगा। बट मैकेवली कहते हैं नहीं, फालतू फालतू का बकवास है वो। अगर आपको लगता है कि जो सिचुएशन है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे अनएथिकल होना है, भाई वहां पे हम अनएथिकल होंगे, तभी आप सही से स्टेट को रन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट मैकेवली सेज हियर। सो हियर वी एंड अप विद दिस टॉपिक। So our next topic will be on Machiavelli views on religion and fortune. So here, friends, we'll cover these two topic of Machiavelli. So if you love learning from our platform, do like, share, and subscribe. Thank you, friends.